मेरे नौजवान साथियों, मैं आपको आज 67वें बीपीएससी पीटी के संदर्भ में बताने जा रहा हूं कि 67वें बीपीएससी पीटी का सिलेबस, ये सिलेबस से मेरा तात्पर्य है, सबसे पहले मैं आपको जीएस के संदर्भ में समझा दूं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। और ये जीएस केवल 67वें बीपीएससी के लिए ही नहीं है, ये यूपीएससी के लिए है, पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए है और अन्य जो छोटे छोटे एग्जामिनेशन हैं जैसे एसएससी है, रेलवे है और अन्य एग्जामिनेशन है, सबों में इनका भागीदारी है। ये काम, इनकी काम माने इसमें आप क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक समग्र जानकारी आपको दें, सबसे पहले जीएस के संदर्भ में। तो जीएस के संदर्भ में आप इस बात को देखिए कि जीएस कहा किसको जाता है, होम इज कॉल्ड जीएस, ये होम इज कॉल्ड जीएस। तो ये जो जीएस के संदर्भ में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहली बात आप ये देखिए कि जीएस को दो भागों में बांटा गया है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर वन इज दैट दैट इज ट्रेडिशनल जीएस, दैट इज ट्रेडिशनल जीएस, that is traditional GS, and second is that is current affairs, that is current affairs. Number one is traditional GS and second is that is current affairs. देखना हमको ये है कि ट्रेडिशनल जीएस के अंतर्गत क्या क्या चीज आता है, which subject will come within traditional GS. तो सबसे पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मच मोर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ GS, दैट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. नंबर वन इज दैट एंशियंट हिस्ट्री, दैट इज एंशियंट हिस्ट्री, medieval history, medieval history, and third is that is modern history, that is modern history, and next point is that is Indian polity, that is Indian polity, and third is that is geography, and geography is divided into three parts. Number one is that principles of geography, of geography, second is that is Indian geography, Indian geography, and third is that is world geography, that is world geography, and last one is that is map. It means that you have to read principal geography, Indian geography, world geography, and map. After that, your syllabus of geography will be covered in eye of GS. Fourth subject is that is fourth subject, Indian economy, that is Indian economy, that is Indian economy, and fifth subject is that is science, and science divided into three parts. Number one is that is bio, second is that is physics, and fourth is that is chemistry. The bio divided into two parts. Number one is that botany, and second part is that is zoology. So in this way we can say that this is the part of science, and the sixth part is that animal husbandry, and seventh is that science and tech, science and
science and tech, science and tech. And eighth is that is art and culture, that is art and culture, that is art and culture. In this way we can say that there are 8 subjects in traditional GS, and 9th subject is that is current affairs, that is current affairs. तो अब हमको ये देखना है कि भाई इसको हम परिभाषित कैसे करते हैं, हाउ कैन आई डिफाइन इट, इट मीन्स दैट GS पोर्शन. तो आपने क्या देखा, व्हाट डिड यू से इन दिस GS सेक्शन, यू हैव सीन, आपने देखा है हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, क्या है इंडियन इकोनॉमी है, साइंस है, फिर क्या है एनिमल हस्बेंड्री है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एंड आर्ट एंड कल्चर है, एंड लास्ट वन इज दैट इज यू कैन से करंट अफेयर्स है. यानी कहने का मतलब 9 सब्जेक्ट, 9 सब्जेक्ट्स इसमें शामिल है. तो आई कैन से दैट, इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट GS is a combination. What is? How can I say that? I can say that what is GS? The GS is a combination of 9 subjects. GS is a combination of a combination of 9 subjects. 9 subjects. Combination of 9 subjects. कम्बिनेशन ऑफ 9 सब्जेक्ट्स. तो भाई ये 9 सब्जेक्ट का ये क्या है, ये समूह है, और इसी को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, ये GS कहते हैं. तो GS में आप देखिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भाई GS तो बहुत कॉमन है, आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेज दैट GS इज वेरी कॉमन, बट इफ यू सी such type of things, after that you can say that GS is very vast, GS is very infinite, GS is like a forest, you can't cover without the guideline of any experience holder teacher. तो इसीलिए आप यहाँ पर जो देखिएगा तो GS का बहुत बड़ा सिलेबस है. तो जब कभी भी GS पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तो ये किसी अनुभवी शिक्षक के साथ ही रह करके आप इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर आप देख सकते हैं. तो सबसे पहली बात यह है कि हम इस GS को कवर कैसे करें, हाउ कैन आई कवर दिस GS. तो हम इसको हम कैसे कवर करें, तो इसको कवर करने के लिए क्या तरीका है आपको, तो इसको कवर करने के लिए जो हम तरीका आपको बतला रहे हैं उस बात को आप ध्यान से देखिए. तो GS का जो प्रश्न होता है, तो वो GS का प्रश्न कैसे होता है भाई, किस आधार पर GS का प्रश्न होता है, इस प्रश्न को आप बहुत बखूबी आप समझ सकते हैं. तो जो कुछ भी अभी तक ट्रेडिशन है, जो कुछ भी अभी तक क्या है, ये ट्रेडिशन है, तो वो ट्रेडिशन क्या है GS का, तो वो कैसे आता है GS का ये प्रश्न, इस बात को आप ध्यान से देखिए. तो जब कभी प्रश्न होता है तो वो प्रश्न का टाइप क्या होता है, व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, तो इसको हम लोग देखते हैं. ये टाइप ऑफ जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये टाइप ऑफ ये क्या है, ये क्वेश्चन है. ये टाइप ऑफ ये क्या है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं, तो इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है. एक क्या होता, ये 3 प्रकार का हम लोग कह सकते हैं, ये 3 प्रकार का क्वेश्चन कह सकते हैं. Number 1 is that general question. Number 1 is that is general question. Second is that is you can say that is bouncer question. That is bouncer question. That is bouncer question. And third is that is you can say that conceptual question. Conceptual question. अब सवाल यहाँ पर है कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन क्वेश्चन होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 2 गो होगा. एक क्वेश्चन कौन होगा भाई, एक क्वेश्चन होगा जनरल क्वेश्चन, ये जनरल क्वेश्चन होगा. और सेकंड क्वेश्चन कौन होगा भाई, जो इंपॉर्टेंट होगा वो सेकंड में कौन होगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा.
कंसेप्चुअल, ये क्या होगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा। तो ये दोनों को यदि आप मेंटेन कर लेते हैं तो आफ्टर दैट आई थिंक योर रिजल्ट विल कम और यू कैन गेट मच मोर मार्क्स इन जीएस एग्जामिनेशन। लेकिन हमको बाउंसर क्वेश्चन पर उतना ध्यान नहीं देना है। प्लीज डोंट फोकस, मच मोर फोकस ऑन बाउंसर क्वेश्चन, not much more focus, not much more focus on bouncer question, ये बाउंसर क्वेश्चन। क्यों भाई? इसलिए कि इनकी संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है। जैसे कि मान लिया जाए, सपोज दैट 100 क्वेश्चन है, सपोज दैट मान लेते हैं कि 100 क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 100 है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन में मोटे तौर पर यदि हम देखें तो जनरल क्वेश्चन की संख्या मान लेते हैं कि 40 है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन की संख्या, ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन की संख्या है तो इसको मान लेते हैं हम 50 है। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 90 क्वेश्चन हो गया, 90 क्वेश्चन हो गया। और मात्र 10 क्वेश्चन क्या है, ये बाउंसर क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन क्या है, ये बाउंसर क्वेश्चन है। तो यदि 10 क्वेश्चन आपसे नहीं भी बनता है तो डोंट माइंड, कोई बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। क्यों? 10 क्वेश्चन यदि नहीं भी बनाते हैं, 90 क्वेश्चन आप बना देते हैं और सभी क्वेश्चन क्या होता है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी व्हाट, एक्यूरेट। और तो इस हिसाब से आप बहुत अच्छा अंक ला सकते हैं। क्यों भाई? इसलिए जब कभी भी रिजल्ट आता है वो 70 और 80 के बीच में ही बना देने पर आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आप तो यहाँ 90 बना रहे हैं। और सेकंड बात, ये क्या सूचना देता है कि आप टोटल लेके नहीं चल सकते हैं। इसलिए प्रश्न संख्या यदि आप 10 नहीं भी बनाते हैं तो 90 बनाते हैं तो एक तो बोझ कम होगा और दूसरी बात आप में एक्यूरेसी आ जाएगी। तो इसीलिए जब कभी क्वेश्चन देखना चाहिए तो प्रश्न क्या करना चाहिए कि जनरल क्वेश्चन को देखिए, फिर बाउंसर क्वेश्चन को देखिए और फिर क्या देखिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन को देखिए। कभी कभी आप देखिएगा कि कुछ बच्चे घर पर आते हैं और पूरे लाइब्रेरी को पूरे अपने मित्रों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ ये क्या करते हैं, बात करते हैं और कहते हैं कि भाई ये 10 क्वेश्चन तो मिलता ही नहीं है। वो नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा, वो बाउंसर क्वेश्चन है। इसलिए उसके प्रति बहुत अधिक क्या होने की, तंग होने की, फ्रस्ट्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यदि 90 क्वेश्चन बनाते हैं, 80 क्वेश्चन बनाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और आपका रिजल्ट इस संदर्भ में आने जा रहा है। इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। यह बहुत बड़ा एक क्या दिया गया है, यह एक विचार दिया गया है कि आप 80 क्वेश्चन किसी भी सेट का अवश्य बनाइए। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका बहुत बड़ा ये जो आप देख रहे हैं वो समस्या का समाधान हो जाएगा। 10 क्वेश्चन के लिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? यदि टोटल क्वेश्चन लेकर के चलिएगा तो ये संभव नहीं हो पाएगा, कन्फ्यूजन डेवलप होगा, बोझ ज़्यादा होगा। इसीलिए दिमाग में ये बात रखनी चाहिए कि कितना हम लिखें, कितना बनावें जो एकदम एक्यूरेट हो, ये एकदम क्या हो, ये एक्यूरेट हो। तो इसी हिसाब से हम लोग कार्य करते हैं। तो आइए, मैंने आपको जीएस के संदर्भ में समझाया, सिलेबस बतलाया। जिस दिन मैं पढ़ाऊंगा उस दिन सब्जेक्ट के बारे में आपसे बात करूंगा। लेकिन इतना ध्यान तो रखना ही चाहिए कि हर बच्चे को जीएस में कैसे पकड़ हो, कौन सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। और जीएस बड़ी मायने की चीज़ है। कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है, चाहे वह यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या जिसको हम लोग पीसीएस एग्जामिनेशन कहते हैं, उसमें जीएस की कोई भूमिका ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता हो। लोअर ग्रेड के एग्जामिनेशन यदि हम लोग देखें तो भाई एसएससी में देखें, रेलवे में देखें, एंड ये क्या कर सकते हैं आपको रेलवे की एग्जामिनेशन को देखें या टीचर ग्रेड के एग्जामिनेशन देखें, सबऑर्डिनेट एग्जामिनेशन देखें, दरोगा देखें या कोई भी एग्जामिनेशन हो, आइदर हायर और लोअर एग्जामिनेशन, इसमें सब की किसकी अहम भूमिका है, जीएस की भूमिका है। इसीलिए आप जीएस से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। और जब कभी मैं पढ़ाऊंगा ये बड़ा बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, पूरी बातों को कहूँगा, पहले आपको समझा दूंगा, फिर समझा करके पूरे संदर्भ को बताऊंगा। इसके बाद आप क्या देखेंगे, उस पर आधारित मैं आपको प्रश्न दे दूंगा और इसके बाद आप सॉल्व करेंगे। आप कोई भी पुस्तक उठाएंगे, आपसे क्वेश्चन क्या होगा, बनेगा, नहीं बनने का कोई सवाल नहीं है। तो इस प्रकार से
हम लोग पढ़ाते हैं और मेरे पढ़ाने का जो अनुभव है वह 22 साल से इस क्षेत्र में मैं हूँ। और इसी बात को ध्यान में रख करके कि बच्चे की क्या आवश्यकता है जीएस सेक्शन में, वो बात को मैं बेहतर तरीके से आपके सामने परोसूंगा, आपके सामने रखूंगा। और यदि आप मेरी बात पर चलते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसमें कोई शंका, कोई शुबा, कोई सस्पिशन, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। मैं आपके साथ हूँ। यदि मैं आपके साथ हूँ तो जीएस में आपको कोई पूछ पकड़ नहीं सकता है। आप जीएस के क्षेत्र में आप क्या होंगे, आगे रहेंगे। जीएस में आप महारत हासिल करेंगे। जो भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा वह प्रश्न आप हल करेंगे। धन्यवाद।